Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Functions and limits. Unit 1. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. G. Functions and limits. Chapter number 1. Second year. Unit 1. Function की definition है. A machine or root f. एक machine या root f which assign या attach to each element of set x with a unique element of set y. एक machine को या एक function को which assign to each element of set x with a unique element of set y is called a function. By each element of this set have unique image. इनके यूनिक का मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ अटैच हो जाए. भाई एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ अटैच हो जाए. ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स. ईच का मतलब है इसके सारे के सारे विद ए यूनिक एलिमेंट, सिर्फ एक के साथ अटैच हो. फॉर एग्जांपल वी हैव 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ. भाई 1 का ताल्लुक किसके साथ है? बी के साथ. 2 का ताल्लुक किसके साथ है? ई के साथ. और 3 का ताल्लुक किसके साथ? ए के साथ. इट डिफाइन द फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव ए यूनिक image. भैया सेट एक्स का यूनिक इमेज है. नाउ वी हैव एग्जांपल 2. 1 का ताल्लुक भाईजान किसके साथ है? सी के साथ. 3 का ताल्लुक, 2 का ताल्लुक ए के साथ. और भाईजान 3 का ताल्लुक किसके साथ? डी के साथ. और 4 का ताल्लुक किसी के साथ नहीं. इट डज नॉट डिफाइन ए फंक्शन बिकॉज 4 हैज नो इमेज. भैया 4 का किसी कोई इमेज नहीं है. इट डज नॉट डिफाइन ए फंक्शन बिकॉज 4 हैज नो इमेज इन सेट वाई. अब एग्जांपल 3. 1 का ताल्लुक भाईजान ए के साथ, 2 का ताल्लुक बी के साथ, 2 का ताल्लुक सी के साथ और 3 का ताल्लुक डी के साथ. इट डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस बी एंड सी इन वाई. भाई 2 के 2 इमेज हैं बी एंड सी which should be unique, which is not unique, so it does not define a function. It does not define a function. Domain and range of a function. Let f from x to y be a function. भाई एक फंक्शन होगा तो फिर ये बात होगी. अगर फंक्शन ही नहीं है तो we cannot discuss domain and range. Then elements of set x are called domain. जब f x से y तक elements of x क्या कराएंगे? domain. And the elements of y और y के elements which becomes image, जो image बन जाते हैं, are called range. For example, in example 1, we have domain 1 2 3 and range है a b c, a b e g, a b c g. Notation and value of a function. By notation and value of a, if a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x, and we can write it as y is a function of x. By y we can write it as notation and value of a function. Once again, if a variable y depends on a variable x, by y किसके ऊपर डिपेंड करता है? x के ऊपर. In such a way that each value of x, भाई जब x को जो भी वैल्यू देंगे, each value of x determine exactly one value of y. भाई x के हर वैल्यू के एवज y की सिर्फ एक वैल्यू निकले, exactly one value. Then we say that y is a function of x. हम कहेंगे y किसका फंक्शन x का, और इसको हम इस तरह लिखेंगे y is equal function of x. Dependent variable and independent variable. Independent variable and dependent variable. If y is equal to f of x is a function, ये function है, then variable x is called independent variable. भाई variable x को क्या बोलेंगे? Independent variable of f, and the variable y is called dependent variable of f. और भाईजान y को क्या बोलेंगे? Dependent variable of y. G. By functions are denoted by letters such as f, comma g, comma h, comma capital F, comma capital G, comma and so on. भाई functions को इस तरह आपने डिनोट करना चाहिए. भाईजान functions को आपने इस तरह डिनोट करना चाहिए. भाईजान बड़ा मशहूर नोट है, इनपुट x है. फंक्शन f ऑपरेट करता है एंड आउटपुट है f of x. ये कंप्यूटिंग मशीन एक मशीन है जो ऑपरेट करेगी. ये फंक्शन
कैन बी कंसिडर्ड एज कंप्यूटिंग मशीन एफ। भाई एक मशीन को, एक फंक्शन को आप कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं। दैट टेक्स वन इनपुट एक्स, जो एक उसमें एक्सपोर्ट करेंगे, ऑपरेट ऑन इट एंड some way in some way and produces exactly one output fx, so y is equal to fx। भाई देखें, ये एक कंप्यूटिंग मशीन है। एक फंक्शन f कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंप्यूटिंग मशीन। एक फंक्शन को एक कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं। दैट टेक्स एन इनपुट x, जिसमें एक इनपुट x डालेंगे, भाई जिसमें एक इनपुट x डालेंगे, ऑपरेट्स ऑन इट, जो इसके ऊपर अमल करेगी, इन सम वे, किसी तरीके से, जो भी उसका फार्मूला होगा, एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट, और सिर्फ वन आउटपुट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। भाई y किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स। नो एग्जांपल वन, गिवन एफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। फाइंड f0, f1, f minus 2, f1 plus x, f1 by x, and where x is not equal to 0। now fx हमारे पास है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। भाई f0 का मतलब जहां जहां x है 0 रखो, भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट माइनस 1। f1 का मतलब जहां जहां x है 1 रखो। now आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2। f minus 2 का मतलब जहां जहां x है माइनस 2 रखो, भाई माइनस 2 रखो, माइनस 2 हेयर, माइनस 2 हेयर, माइनस 2 हेयर। नाउ इकट्ठा करें, वी गेट माइनस 25। भाई f1 प्लस एक्स का मतलब जहां जहां x है वहां 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स। नाउ फार्मूला खोल लिया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 f1 ओवर x। भाई जहां जहां x है वहां क्या बोलते 1 ओवर, यहाँ पे 1 ओवर x, यहाँ पे 1 ओवर x, यहाँ पे 1 ओवर x। नाउ वी हैव 1 ओवर x क्यूब माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x एंड माइनस 1। An example है, let fx बराबर x क्यूब, find the domain and range of f। भाई fx is defined for every value, every real number x। fx is defined for every real, यानी कि जहां पे जो मर्जी रखे आंसर निकलेगा। फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर x, fx बराबर x के इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। भाई नॉन नेगेटिव नहीं आएगा उसके है ना। सो डोमेन ऑफ f क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई जहां पे जो मर्जी पुट करें कोई मसला नहीं। भाई डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज ऑफ आपका सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। भाई सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएंगे, जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। प्रेजेंट सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। जी वंस अगेन एफ एक्स हमारे पास है एक्स के, find the domain and range of f। now fx is defined for every real number of x। भाई यहाँ पे जो मर्जी रखो, भाई रकम बट्टे में हो या जजर में हो तो वहां पर फड्डे पड़ने के चांसेस हैं। ये सिंपल फंक्शन है, लिहाजा यहाँ पे डिफाइंड होगा, आंसर निकलेगा। दस फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स के इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब नेगेटिव आंसर नहीं देगा, जीरो दे सकते हैं या पॉजिटिव दे सकते हैं। So domain of f का set of all real numbers and range of f set of all non-negative real numbers। जी एग्जांपल fx बराबर है x ओवर x स्क्वायर माइनस 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। आपने डोमेन एंड रेंज किसकी निकालनी? f की। भाई at x is equal to and x is equal to minus 2, at x is equal to and x is equal to minus 2, fx बराबर x ओवर x स्क्वायर माइनस 4 is not defined, is not। लिहाजा भैया ये दो वैल्यूज के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, लिहाजा डोमेन ऑफ का रियल में से ये दो नंबर निकाल दो, रियल माइनस माइनस 2 2। अब भाई जरा देखिएगा रेंज ऑफ एफ। भाई आप देखेंगे यहाँ पे इनके अलावा जो मर्जी प्रूव, अगर बड़ी वैल्यू पुट करो बड़ा आंसर आएगा। तो रेंज क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई इसकी रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई सेट ऑफ ऑल रियल numbers। now fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 का जजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ। आपने भैया डोमेन एंड रेंज किसकी निकालनी है आपको? वी सी दैट
if x is in the interval -3 is less than x is less than 3, स्क्वायर भाई इधर देखिएगा x is in the interval -3 is less than x is less than 3, square the square root of a negative number is obtained. Hence, for this interval, no real numbers exist. लिहाजा डोमेन ऑफ f क्या होगा? x belongs to R और x mod is greater equal to 3. या 3 होगा या 3 से क्या होगा जी? बड़ा होगा जी. लिहाजा डोमेन ऑफ f क्या होगा? -3 से -infinity यूनियन 3 से infinity. और भाई -infinity और infinity के ऊपर हमेशा ओपन आता है. Now range of f का set of all positive real numbers. भाई इसका आंसर 0 आ सकते हैं. Set of all non-negative real numbers. Set of all non-negative real numbers. इनका इसका जो रेंज होगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स या क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to infinity. और इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है जी. इन्फिनिट के ऊपर हमेशा क्या आता है जी? ओपन इंटरवल जी. मेथड टू ड्रा द ग्राफ. भाई ग्राफ ड्रा करने का मेथड. टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f(x). ये आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है. वी गिव आर्बिट्रेरी वैल्यूज टू अवर चॉइस ऑफ टू x. हम x को अपने हिसाब से वैल्यूज देंगे. वी गिव आर्बिट्रेरी वैल्यूज, कोई भी उसको वैल्यूज देंगे टू अवर चॉइस अपनी सूरत के साथ. एंड फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y. और उसके रिस्पेक्ट हम उसके रिस्पेक्टिवली वैल्यूज ऑफ y फाइंड करेंगे. इन दिस वे वी गेट ऑर्डर पेयर्स. आप हमारे पास ऑर्डर पेयर आया था x1 y1. जब x1 रखेंगे तो y1 आएगा, जब x2 रखेंगे तो y2 आएगा, जब x3 रखेंगे तो y3 आएगा, एंड सो ऑन. These ordered pairs represent points of the graph. ये क्या? ये ordered pairs represent points on the graph in the Cartesian plane. We locate these points. आप इन points को locate करेंगे, वहां पे draw करेंगे, and join them together. उनको आपस में free hand join करते हैं. Then we get graph of the function. फिर हमारे पास क्या आएगा? graph of the function आएगा. We get the graph of the function. एग्जाम्पल है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) हमारे पास x²+1 एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. और इसका ग्राफ भाई डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन निकालना एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. हियर y बराबर f(x) बराबर x²+1. f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर x. भाई यहाँ पे आंसर निकलेगा. आंसर इन्फिनिट के या आयोटा के चांसेस नहीं है, क्यों? जजर में हो या बटे में हो तो वहां पे चांस होते हैं. f(x) is defined for every real number x. Further, for every number x, y बराबर f(x) बराबर x²+1 is a non-negative real number. Non-negative real number का नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर में सम ऐड हो रहा है ना, वन ऐड हो रहा है. देन hence domain of set of all real numbers. लिहाजा डोमेन का सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो मर्जी रखो, नेगेटिव पॉजिटिव बड़ी छोटी, आंसर एग्जिस्ट करेगा. लिहाजा डोमेन का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. डोमेन होती है वो चीज जो रास आ जाए, जो रास आ जाए, जो सूट कर जाए, वो डोमेन होती है. अब रेंज क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर. नॉन नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता एक्सेप्ट द पॉइंट्स 0 is less than y is less than 1. To draw the graph of y is equal to x²+1, consider the table. हमने x को -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ओरिजिन के दाएं बाएं जी, उसके रिस्पेक्ट आपने y निकाल दिया. भाई जब -3 पुट को 10 आएगा, -2 पुट को 5 आएगा, -1 पुट को भाई जन जाएगा 2, 0 पुट करोगे 1, 1 पुट करोगे 2, 2 पुट करोगे 5 और 3 पुट करोगे 10. Plotting these points and join them with the smooth curve. उनको बिल्कुल फ्री हैंड ज्वाइन करना. We get the graph of the function and which is shown in the figure. जिसको आप फिगर में शो करेंगे, which is shown in the figure. By plotting these points, इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना चाहिए. जैसे -3 और 10 होगा, -2 और 5 होगा, -1 और 2 होगा, 0 और 1 होगा, 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, और 3 और 10 होगा. देन them and with the smooth curve, उनको स्मूथ कर्व के साथ ज्वाइन करेंगे. We get the graph of the function which is shown in the figure. जी भाई जल्दी देखें, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -up to 1.
जब 0 रखोगे तो 1 आएगा जी, जब 1 रखोगे तो 2 आएगा जी, -1 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो भाईजान क्या आएगा जी, 2 रखोगे तो भाईजान 5 आएगा, 2 रखोगे 5 आएगा, इधर -2 रखोगे तो 5 आएगा, जब 3 रखोगे तो भाईजान 10 आएगा, -3 रखोगे 10 आएगा जी। भाई इन पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड ज्वाइन किया जी। देखो ना, जब 0 रखोगे तो 1 आएगा, ये पॉइंट आ गया, जब 1 रखोगे तो 2 आएगा, तो ये पॉइंट आएगा भाई, जब 2 रखोगे तो 5 आएगा, ये पॉइंट बनेगा, जब 3 रखोगे तो 10 आएगा, ये पॉइंट बनेगा जी। इस तरह -1 रखोगे तो भाईजान 2 आएगा जी, ये पॉइंट आएगा जी, -2 रखोगे तो 5 आएगा, ये पॉइंट, -3 रखोगे 10। इन पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड ज्वाइन किया, एक स्मूथ कर्व हमारे पास आ गया भाईजान, एक स्मूथ कर्व हमारे पास आ गया भाईजान। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला है अलजेब्रिक फंक्शंस। भाई पहला जो है अलजेब्रिक फंक्शन, उसका पहला पार्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, भाई एफ एक्स पी एक्स बराबर है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन मनफी टू एक्स पावर एन मनफी टू अप टू सॉन ए टू एक्स के प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। भाई ए फंक्शन जिसमें एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही ग्रेजुअली, और you where the coefficients a n minus 1 a n मनफी 2 are real numbers। ये coefficients का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जी, ये रियल नंबर्स हैं जी, ठीक है जी। तो यहाँ पावर n थी, फिर n माइनस 1, फिर n मनफी 2, फिर n मनफी 3, अप टू सॉन पावर डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। The exponent powers are the powers are या the exponent are non-negative, the power के non-negative integers is called a polynomial। भाई नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए भाई, 0 एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, अगर n 0 ना हो, देन पी एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, एंड ए एन इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स। भाई वो ए एन को क्या बोलेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल पी एक्स हमारे पास है 2x4 minus 3x cube plus 2x minus 1 is a polynomial function of degree 4, हाईएस्ट पावर 4 है ना, विद लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास क्या 2, इसका लीडिंग जो पावर हाईएस्ट है इसका कोएफिशिएंट क्या जी 2, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या 2 है। आगे लीनियर फंक्शन, इफ द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन इज 1, अगर डिग्री हाईएस्ट 1 होगी देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इट इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स बराबर है ए एक्स समा बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। भैया ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो खैर है, और ए और बी दोनों रियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एफ एक्स हमारे पास है 3x प्लस 4 या y बराबर है 3x प्लस 4, इज ए लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है ना, इज ए लीनियर फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन एंड रेंज का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, भाई इसकी डोमेन और रेंज का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आगे आइडेंटिटी फंक्शन, ये फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स, भाई जिस पर अमल करेगी वही चीज दे दे, जिस एलिमेंट पर अमल हो वही एलिमेंट आ जाए, कोई चेंज ना आए। ऑफ द फॉर्म आई एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। भाई उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। भाई जो डाला वही निकला, जो उन इनपुट है वही आउटपुट हो, तो उसको हम भाई जिन क्या बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, उसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इट्स इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट एक्स इटसेल्फ, लेकिन एक्स है 1 पर अमल किया 1 आ गया, 2 पर अमल किया 2 आया, 3 पर अमल किया 3 आ गया, 4 पर अमल एक्स ही आ गया। इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, इसको भाई क्या बोलना है आइडेंटिटी फंक्शन। आगे कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन सी फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय, जब सी एक्स किसी पर अमल करता है रिजल्ट आता है ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ए बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। देखें ये एक्स है भाई, 1 ने अमल किया सी आया, 2 ने अमल किया सी आया, 3 ने अमल किया सी आया, 4 ने अमल किया सी आया, यानी कि अगर रेंज एक एलिमेंट हो, रेंज क्या हो जी सेम एक और सेम एलिमेंट हो, तो हम बोलेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है। आगे रैशनल फंक्शन, ए फंक्शन आर एक्स ऑफ द फॉर्म, जिसमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही हूँ, वेयर बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स फंक्शन, और नीचे वाला 0 ना हो, इस कॉल्ड ए रैशनल फंक्शन। भाई उस फंक्शन का जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो उनका जो रिजल्ट होगा उसको क्या बोलेंगे रैशनल फंक्शन। भाई दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भाई वो था आपका जो पहला था अलजेब्रिक फंक्शन। नाउ
we have trigonometric function y बराबर sin of x, भाई y बराबर है sin of x, y बराबर को डोमेन का सेट ऑफ आर नंबर रेंज होगा -1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 1, भाई y बराबर cos of x डोमेन का सेट ऑफ आर नंबर रेंज होगी -1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस, ये भैया डिफाइंड है। ये क्या है जी, डिफाइंड है कि साइन कॉस की डोमेन होगी सेट ऑफ आर नंबर और रेंज होगा -1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 1, भाई -1 से लेकर 1 तक आप इसकी रेंज होगी। वजन y बराबर tan of x, डोमेन क्या है x, x belongs to R and x is not equal to 2 and plus 1, भाई मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो है ना वो नहीं आना चाहिए, लिहाजा n जो है ना वो इज एनिटी, लिहाजा रेंज का सेट ऑफ आर रियल नंबर, रेंज का सेट ऑफ आर रियल नंबर। अब y बराबर cot of x, इसकी डोमेन होगी x, x belongs to R and x is not equal to n pi, मल्टीपल ऑफ पाई जो है ना वो नहीं होना चाहिए, where n is positive integer और रेंज का सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। नाउ वी हैव y is equal to secant x, डोमेन होगा x, x belongs to R एंड रेंज होगी ना भाई एंड x is not equal to 2 and भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, लिहाजा n इज पॉजिटिव इंटीजर, रेंज क्या होगा y इज ग्रेटर इक्वल टू 1 या y इज लेस इक्वल टू -1, या 1 हो या 1 से बड़ा हो या -1 हो या -1 से छोटा हो, ये इसकी रेंज है। नाउ वी हैव y को secant x, डोमेन का होगा x such that x belongs to R and x is not equal to n pi, where n is positive integer और रेंज का होगी y greater equal to 1 और y less equal to -1 जी भाई जन y। नाउ वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y बराबर sin inverse x if and only if x is equal to sin y, भाई जन y बराबर sin inverse x, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x बराबर होगा sin of y, where minus pi by 2 is less than equal to y is less than equal to pi by 2 and -1 is less than equal to, इसको छोड़ेंगे y is equal to cos inverse x if and only if x is equal to cos y and y बराबर tan inverse x if and only if x is equal to tan y। आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a function in which the variable, a function in which the variable exists, variable appears in the exponent या पावर is called an exponential function, भाई जिसमें पावर जो है ना वेरिएबल में हो और बेस कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, फॉर एग्जांपल y बराबर e की पावर ax, y बराबर 2 की पावर x are the examples of exponential functions। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, इफ y x बराबर a की पावर y देन y बराबर होगा log of x बेसिस where a is positive and a is not equal to 1 नहीं होना चाहिए, इस कॉल्ड लॉगरिथमिक, भाई जिसमें log इन्वॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ a is equal to 10, अगर a 10 आ जाए then we say log of x base 10 which is known as common logarithm, इसको भाई जन क्या बोलेंगे कॉमन logarithmic of x बोलेंगे, क्या बोलेंगे कॉमन logarithmic of x। if a is equal to e then we have log x base e is equal to ln x which is known as the natural logarithmic of, इसको भाई जन क्या बोलेंगे natural logarithmic of x बोलेंगे, भाई इसको क्या बोलेंगे natural logarithmic of x।